فیصل آباد میں پاک فوج کو بنیاد مرصوص آپریشن کی کامیابی پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان نے ریلی کا انعقاد کیا۔ کارکنان نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائے، محبت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے آفتاب نواز کی یہ رپورٹ۔ فیصل آباد میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان نے ریلی کا انعقاد کیا۔ ریلی کی قیادت پیپلز پارٹی کے مقامی رہنماؤں ماسٹر اشفاق اور دیگر نے کی۔ قررین نے ریلی کے شرکاء سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستان نے جس پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری سے بھارت کو اسی کی سرزمین پر شکست فاش سے دوچار کیا، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے اس پاکستانی قوم کے اوپر چڑھائی کی اور اس غیرت مند قوم نے وہ جواب دیا کہ جو دنیا کی پاکستان مخالف قوتیں تھیں ان کی جڑیں ہلا کے رکھ دی۔ آج ان کو پاکستانی فوج کا بھی قدر ہے اور اس قوم کی بھی قدر آ گئی ہے۔ فوج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر بھارت کو عبرتناک سبق سکھایا ہے۔ قررین نے کہا کہ پاکستانی شہینوں نے اس دل دشمن کے گھر گھس کر اس کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بناتے ہوئے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ ہماری عوام بہت زیادہ خوش ہے۔ آج کسی جماعت کا کوئی تعلق نہیں، خاص طور ہر پاکستانی کا ہے۔ تو پاکستانی آج ہم بہت خوش ہیں، بہت بڑا مان رکھا ہے، ہمارا فخر ہے۔ پوری پاک فوج کے ہیروز نے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کر کے پوری قوم کے سر فخر سے بلند کر دیے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان نے بنیاد مرصوص آپریشن کی کامیابی پر پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کیمرہ مین حسن چوہان کے ساتھ آفتاب نواز، 5 نیوز، فیصل آباد۔ 1965 کے ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قصور کے معروف کچہری چوک میں نصب شعلہ فگن جنگی گن محض ایک ہتھیار نہیں بلکہ پاکستانی فوج کے عزم، بہادری اور قربانی کا نشان بھی ہے۔ اس جنگی گن کے حوالے سے دیکھتے ہیں بیورو چیف قصور سجاد انصاری کی رپورٹ۔ یہ ہے شعلہ فگن ایئر ڈیفنس گن جو 1965 کی جنگ میں 19 لائٹ ایئر ڈیفنس ایس پی ریجمنٹ کا حصہ رہی اور دشمن کے کئی طیاروں کو نشانہ بنایا۔ اس گن نے ایک آرمر ڈویژن اور 11 ڈویژن کو فضائی تحفظ فراہم کیا اور دفاع وطن کے محاذ پر کلیدی کردار ادا کیا۔ سانو فخر ہے اس ٹینک تے جن نے 1965 دی جنگ وچ انڈیا دے طیارے نوں نصب و نبود کیتا سی اور خیم کرنے محاذ تے ٹینک نے تو انہاں دی آرمی نوں تباہ و برباد کیتا سی۔ سانو فخر ہے اپنے چیف آف آرمی سٹاف تے، سانو فخر ہے اج بھی اس ٹینک تے جڑا کہ 1965 چ انڈیا دے کئی جہاز نے نیست و نبود کیتے۔ اج بھی اسی یہ تے فخر کرنے ہاں اور سانو پاک آرمی تے پورا یقین ہے۔ اس جنگ کے دوران شعلہ فگن ریجمنٹ کے 3 بہادر سپوتوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا جن کی قربانیاں آج بھی قوم کے دلوں میں زندہ ہیں۔ انڈیا کے پاس چاہے رفیل ہوں جو بھی ہوں، ہمارے پاس اللہ کے فضل سے F-16 جے تھنڈر 17 موجود ہیں جو انڈیا کو بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ گن آج بطور یادگار قصور شہر کے مین چوک میں نصب ہے تاکہ نئی نسل کو یاد رہے کہ وطن کی آزادی خون کے نذرانے سے حاصل ہوئی تھی۔ شعلہ فگن ریجمنٹ آج بھی اپنی روایات پر قائم مادر وطن کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ یہ صرف ایک گن نہیں بلکہ ایک پیغام ہے کہ ہم نے آج بھی ماضی کی طرح دشمن کو شکست سے دوچار کیا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سجاد انصاری، 5 نیوز، قصور۔ سانگھڑ میں بھی آپریشن بنیاد مرصوص پاک فوج کی کامیابی پر شہر کے صحافیوں، وکلا برادری، چیمبر آف کامرس اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سمیت طلبہ نے یوم تشکر ریلی نکالی۔ مزید دیکھتے ہیں سانگھڑ سے ڈسٹرکٹ رپورٹر عمران ارائیں کی اس رپورٹ میں۔ مسلح افواج کی بھارتی جارحیت کے جواب میں کامیاب آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی پر اظہار تشکر کے لیے سانگھڑ کے وکلا، تاجر، سماجی کارکنان سمیت طلباء سڑکوں پر نکل آئے اور مسلح افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ یہ ریلی ہندوستان کے مودی کو ہندوستان کو پیغام دے رہی ہے کہ ہم یکجا ہیں، ایک قوم ہے۔ دنیا میں ان کے ساتھ جو ہوا ہے نا، ان کو اگر اپنا کوئی بھی ان کو راستہ نہیں ملے گا اور دوبارہ انشاءاللہ ادھر کا رخ نہیں کریں گے۔ ترکا نے یہ پیغام دیا کہ ہم ملک کی سالمیت کے لیے ہر وقت یکجان اور متحد ہیں۔ عمران ارائیں، 5 نیوز، سانگھڑ۔ گوجرانوالہ کے مختلف علاقے گندگی کا گڑھ بن چکے ہیں۔ گندگی کے باعث علاقے بدبو اور تعفن پھیلنے لگا ہے جس کے باعث مختلف بیماریاں جنم لینے کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ گندگی کی وجہ سے مکین سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ مچھروں کی افزائش میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں بیورو چیف حاجی ظفر اللہ چودھری۔
جی بالکل اس وقت میں گجرانوالا کی یوسی 71 افتخار کالونی میں موجود ہوں. آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر گندگی کی وجہ سے بدبو اور تعفن پھیل چکا ہے. تمام اہل علاقہ سراپا احتجاج ہیں. ان کا کہنا ہے کہ فوری طور پر میونسپل کارپوریشن یہاں پر ہمارے صفائی ستھرائی کرائے, صاف ستھرا پنجاب جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے حکم یہاں پر دیے گئے تھے لیکن ان کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے. اہل علاقہ موجود ہے, میں ان سے بات کرنے کی کوشش کروں گا. بابا جی آپ بتائیے گا کہ آپ کن مسائل کا سامنا ہے. میں گجرانوالا یوسی 71 افتخار کالونی کا رہنے والا ہوں. ساڈا یہ جی مطالبہ مریم صاحب نے صاف پنجاب دا آخیا سی بھئی اسی پروگرام بنایا, بڑے خوش ہوئے سا, لیکن اتنے کوئی نہ کوئی ایم پی ہے, نہ کوئی ایم این ہے, نہ کوئی افسر, نہ کوئی سنتا ہے, نہ کوئی اتنے صفائی واسطے آندا ہے. نیرا آندے نے جی صاف ستھرا پنجاب ہے. سانو یہ صاف ستھرے پنجاب نہ کی لگے جدو اصا گندگی چ رہنا ہے. جہاں تے سانو کوئی ایسی جگہ دسو نا جتنے صاف ستھرا اسی اتنے ٹر جائیے. ساری کوئی بندہ گل ہی نہیں سنتا. آ ویکھو بل جڑے نے یہ تارے, آ ویکھو سارے بل تارے نے. کوئی بندہ سارے کول کمپلیناں بھی نے انہاں دیاں تے وہ آندے نے اسی کمپلین جی نہیں بس پیرا مار کے ٹر جانے, اصل تے کدے کیتا کچھ نہیں. جی بالکل آپ نے بزرگ کی بات سنی. ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر بل بھی ادا کیے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. صاف ستھرا پنجاب کہاں ہے, وہاں ہم چلے جائیں. مریم نواز سے انہوں نے مطالبہ کیا. مزید یہاں پر شہری موجود ہیں علاقہ مکین. آپ بتائیں جی کیا مسئلہ ہے. جی سانو بہت زیادہ مسئلہ ہے. ستھرا پنجاب دی سکیم چلی سی, اسی خوش ہوئے سا, لیکن اتنے نہ کوئی جھاڑو مارن والا آندا, نہ کوئی وہنیاں صاف کرن آندا, نہ کچرے واسطے ٹرالیاں دیندے نے جڑیاں اسی کچرا اتنے سٹ لئیے. ساڈے گھراں دے کول کچرا سٹ جاندے نے, بہت زیادہ بدبو آندی ہے تے مچھر بہت زیادہ ہے تو رات نوں تنگ کردا ہے تے اسی بہت پریشان ہاں. ساڈے بچے بھی پریشان نے. سانو یہ ساریاں سہولتاں دتیاں جان جڑیاں مریم نواز دی خوشحالی دی سکیم دیاں. جی بالکل آپ نے یہاں پر اہل علاقہ کی بات سنی. ان کا کہنا ہے کہ مچھر پیدا ہو چکا ہے, نیندیں حرام ہو چکی ہیں اور مریم نواز سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر یوسی 71 کے جو ہماری افتخار کالونی ہے یہاں کی صفائی کرائی جائے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی بیماریوں سے بچ سکے. پاک فوج کی جانب سے آپریشن بنیان مرصوص کو کامیابی سے مکمل کرنے پر دادو میں ڈی ایچ کیو اسپتال انتظامیہ نے یوم تشکر بنا کر پاکستان زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا. مارکہ حق کے دوران پاک فوج شہید جوانوں اور شہید شہریوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا. تفصیلات دادو سے اللہ بخش کی رپورٹ میں دیکھیے. آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان آرمی, پاک بحریہ اور پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں کی جانب سے دشمن بھارت کو بھرپور جواب دینے کے بعد آپریشن بنیان مرصوص کے مکمل ہونے کی خوشی میں ڈی ایچ کیو اسپتال انتظامیہ نے یوم تشکر منایا. اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر امجد مستوی کی زیر نگرانی میں پاکستان پیرامیڈک اسٹاف کے عملے نے پاکستان زندہ باد ریلی کا انعقاد کر کے فلک شگاف نعرے لگائے, جہاں تگمہ امتیاز ڈپٹی کمشنر دادو سید مرتضی شاہ نے خصوصی شرکت کی اور شرکا نے افواج پاکستان کی بہادری کو سراہا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کے جو ہے وہ دانت کھٹے کر دیے ہیں, تو اس حوالے سے ایک اظہار تشکر اور یوم تشکر کے طور پہ جو ہے وہ آج ہم سب یہاں پہ ساتھ ہوئے ہیں. جب بھی انڈیا نے ہم سے الجھنے کی کوشش کی تب بھی وہ ہم سے ہاری ہے. پاکستان زندہ باد. پوری دنیا کو پاک آرمی نے بتا دیا ہے کہ ہمارا ملک جو پاکستان ہے اس پہ حملہ کرنا یا اس کے اوپر جارحیت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم نے, ہمارے فوجیوں نے, ہماری پاک آرمی نے انڈین نیوی کو, انڈین آرمی کو اور انڈین ایئر فورس کو ایسے ٹوٹے چبائے ہیں کہ ان کی نسلیں یاد کرے گی. پاکستان زندہ باد ریلی کے نام پر شرکا نے آپریشن بنیان مرصوص میں افواج پاکستان کے شہید جوانوں اور شہید سویلین کو بھی خراج تحسین پیش کیا. اللہ بخش, نمائندہ 5 نیوز دادو. ڈائریکٹر زراعت توسا بہاولپور محمد جمیل غوری کا دورہ صادق آباد. تحصیل کے مختلف علاقوں میں کپاس کی کاشت کا جائزہ لیا. کپاس کی کاشت میں کسانوں کو درپیش مسائل سنے. نہری پانی کی دستیابی کے لیے اقدامات کی یقین دہانی بھی کروائی. مزید جانتے ہیں ملک طلحہ اکمل کی رپورٹ میں. آباد میں کپاس کی کاشت کا عمل جاری ہے. ڈائریکٹر زراعت توسیع ڈویژن بہاولپور محمد جمیل غوری نے سرکل صادق آباد, سرکل محمد پور, رانجے خان اور سرکل سنجر پور کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا, جہاں انہوں نے کپاس کی کاشت کا جائزہ لیا اور کسانوں کے مسائل سنے. ٹیل کے کسانوں تک نہری پانی کی عدم دستیابی کا نوٹس لیا اور کسانوں کو جلد نہری پانی کی دستیابی کے اقدامات کی یقین دہانی کروائی. ٹیل پہ ہونے کی وجہ سے لامحالہ یہاں پہ پانی کی دستیابی ذرا کم ہے. کاشتکاروں کو پانی کی عدم دستیابی کے بڑے مسائل ہیں. تو انشاءاللہ چیف اریگیشن جو ہیں ان سے یہ میں تمام معاملات ڈسکس کروں گا اور انشاءاللہ
यहाँ पे जो पानी की दस्तयाबी है उसको यकीनी बनाएंगे। डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद जमील गौरी का मजीद कहना था कि डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में कपास की काश्त का टारगेट 4,85,000 एकड़ है, जो 25 मई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सलीम मसूद का कहना था कि किसान कार्ड के हवाले से भी किसानों को मालूमात फराहम कर रहे थे। तो हमारा किसान कार्ड है उसके हवाले से भी जिम्मेदार को आगाह कर रहे हैं कि वो पहले 12.5 एकड़ तक काश्तकार उसमें हिस्सा ले सकता था, अभी वो गवर्नमेंट ने जो हद है वो 25 एकड़ कर दी है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत सईद अहमद सोलंगी, सीनियर ज़राअत ऑफिसर आसिफ अमीन ने भी किसानों को रहनुमाई फराहम की। ज़राअत तौसी मोहम्मद जमील गौरी के दौरे से टेल के किसान पुरामीद है कि जल्द से जल्द नहरी पानी फराहम किया जाएगा ताकि वो कपास की फसल की काश्त मुकम्मल कर सके। कैमरा टीम के साथ मलिक तलहा अकमल, 5 न्यूज़, सादिकाबाद। पाक भारत जंग की वजह से मामलात ज़िंदगी मुतासर हुई, मगर सरगोदा की दरामदात में कोई कमी नहीं आई, बल्कि पाकिस्तान की फतह के सबब बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ गया है और सरगोदा की मसनूआत की बैरून मुल्क मांग में भी इजाफा हुआ है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं सैयद अशर नवेद से। अशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आबी जारियत से फ़िज़ाई जारियत तक हमसाया मुल्क भारत ने जो है वो बुज़दिलाना किरदार अदा किया, लेकिन पाक फ़ौज ने उनके दांत खट्टे कर दिए। हम इस वक्त मौजूद हैं सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। हम जानना चाह रहे थे कि क्या इन जंगी हालात में हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई फ़र्क बना, कारोबारी मामलात कैसे रहे। हमारे साथ मौजूद हैं सदर सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा यासिर कयूम। आइए उनसे दरियाफ्त करते हैं कि क्या पोजीशन रही। जी बिल्कुल, जंगी माहौल था, कुछ इश्यूज चल रहे थे, लेकिन जिस तरह हमारी पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी, और उस वजह से ये है कि बिज़नेस कम्युनिटी का मोराल बहुत अप हुआ है। आप देखें हमारी स्टॉक एक्सचेंज कहाँ चलेगी, और सरगोदा की जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिन ब दिन और इम्प्रूव हो रही हैं एक्सपोर्ट के हवाले से। जी, आपने सदर सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात को सुना। उनका कहना है कि इन जंगी हालात के बावजूद हमारी एक्सपोर्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि कारोबारी सरगर्मियाँ और जो है इसके साथ साथ दीगर मामलात रूटीन के मामूल के मुताबिक चलते रहे, और पाक फ़ौज का जो किरदार है वो बेलाशुबा गिरां कदर है और काबिल तकलीद भी है। हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमारा दिफा जो है वो मजबूत हाथों में है। शेखपुरा प्रेस क्लब की जानिब से पाक फ़ौज से इज़हार तशक्कुर करने के हवाले से एक अजीम शान रैली निकाली गई। रैली में सहाफ़ियों, वकला, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इसी पर मज़ीद देखते हैं मोहम्मद शराज संधू की ये रिपोर्ट। प्रेस क्लब शेखुपुरा की जानब से पाक फौज से इजहार तशक्कुर के हवाले से अजीमुल शान रैली निकाली गई, जिसकी सदारत ग्रुप लीडर शहबाज अहमद खान, साबका जनरल सेक्रेटरी सफदर अली शाहीन ने की। रैली में सहाफ़ी, वकला, तलबा, शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली का आगाज जनाब पार्क से हुआ, जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब शेखुपुरा पहुँचने पर जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। शुरका ने हाथों में कौमी परचम और पाक फौज से यकजहती के बैनर उठा रखे थे। फिजा पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंजती रही। मुकर्रीन ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पूरी कौम अपनी बहादुर पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। जी, आज की रैली का मकसद जो है, हमें अपनी पाक फौज के साथ जो है ना जी इजहार तशक्कुर है उसका मकसद, क्योंकि जिस तरह दुश्मन ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना वार करते हुए हमारे नहत्ते शहरियों को निशाना बनाया और उनका मुंह तोड़ जवाब देते हुए आप पाक फौज ने दिन की रोशनी में उनको जिस तरह से उनका सत्यानाश किया, उनका बेड़ा गर्क किया, ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। बिल्कुल शरात देखें कि पूरे पाकिस्तान में पाक फ़ौज के हक़ में जो रैलियाँ निकल रही हैं, जो कन्वेंशन हो रहे हैं, हर सिविल सोसाइटी, सियासी, समाजी, कोई भी सियासी जमात है, कोई भी किसी भी शोबे से किसी का तल्लक है, कोई सरकारी है, कोई प्राइवेट है, कोई फैक्ट्री वाला है, सब ने आर्मी के साथ इश्क, मोहब्बत और प्यार का इजहार किया। शेखुपुरा प्रेस क्लब को आज़ाद हासिल है कि आज जितनी बड़ी रैली पाक आर्मी के हक़ में जो दी गई, जो निकाली गई, इसमें भरपूर तरीके से ज़िला भर से सहाफ़ियों ने शिरकत की। रैली के एहतमाम पर इंडिया की जहारियत के नतीजे में शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों और शहीद शहरियों की गायबाना नमाज जनाजा प्रेस क्लब शेखुपुरा में अदा की गई और इनके दर्जात की बुलंदी के हवाले से खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शराज संधू, चैनल 5 न्यूज़, शेखुपुरा।
पाकिस्तानी फ़ौज की भारत से जंग जीतने के बाद मुल्क भर की तरह शोरकोट में जश्न मनाया जा रहा है। FW और मोटरवे पुलिस की जानिब से भी तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफ़सीलात बता रहे हैं नुमाइंदा चैनल 5 न्यूज़ मोहम्मद शहबाज अपनी रिपोर्ट में। पाकिस्तानी फौज की भारत से जंग जीतने के बाद मुल्क भर की तरह शोरकोट में भी जश्न मनाया जा रहा है। FW और मोटरवे पुलिस की जानिब से भी तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड साजिद अख्तर, कमर GM मोटरवे, लेफ्टिनेंट कर्नल फिदा हुसैन, मेजर दाइम SP मोटरवे पुलिस मकसूद, अंजम डोगर NHA ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर मजहर अली DSP मोटरवे पुलिस, काशिफ अमीन CPO मोटरवे पुलिस, नईम अब्बास शाह, मोहसन रजा साकी, मोहम्मद जुहेब, अमजद महर, मुदस्सर भंगू के अलावा दीगर मुलाजमीन भी मौजूद थे। तकरीब से पहले आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। इस हवाले से लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड साजिद अख्तर का कहना था कि हमारी फौज ने भारत को भरपूर जवाब दिया है और हमारी पूरी कौम अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। हमारी फौज ने दुश्मन के घर घुसकर उसको औकात याद दिला दी है। हमें अपनी अफवाज पर फख्र है और हमारी फौज चट्टान की तरह मजबूत है। कैमरामैन अजान शहजाद के साथ मोहम्मद शहबाज, चैनल 5 शोरकोट। शीशावतनी म्यूनसिपल कमेटी का तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। शहरी की खुद पर पेट्रोल छिड़क कर खुदसोसी की कोशिश। मुतासरीन ने शदीद एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि इंसाफ फराहम किया जाए। शीशावतनी में वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। रेस्क्यू 1122 एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए मोहम्मद यूनुस को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ उसे इमदादी तबी फराहम की गई है। मोहम्मद यूनुस ने इल्ज़ाम लगाया कि बल्दिया एहलकारों ने उसका सामान तोड़ दिया और जबरन हटा दिया, हालांकि वो साइड पर बैठकर रोज़ी कमा रहा था और उसकी मौजूदगी से किसी रास्ते में रुकावट नहीं आ रही थी। यूनुस का कहना था, अगर हमें यहाँ से हटाया गया तो मैं 4 बच्चों समेत खुदकुशी कर लूँगा। वाक़े के बाद दीगर मुतासर अफराद ने शदीद एहतजाज किया और मुतालबा किया कि उन्हें मुतबादिल रोज़गार या जगह फराहम की जाए। देपालपुर में बासर अफराद ने इंतज़ामिया से मिली भगत से किराएदारी एक्ट के ज़रिए बेवा खातून और यतीम बच्चियों को सरकारी दुकान और घर से बेदखल कर दिया है। बेवा खातून बेटियों समेत दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। देपालपुर में मुतासरा ख़ानदान बेवा खातून रज़िया बीबी और यतीम बेटियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से किराएदारी एक्ट के ज़रिए 50 साल से सरकारी दुकान पर कारोबार करके गुजर बसर कर रहे हैं। बासर अफराद ने इंतज़ामिया की मिली भगत से गैर कानूनी तरीक़ों से न सिर्फ उनसे दुकान छीनी बल्कि उनके सरों से छत भी छीन ली है। अब वो दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने पर कत्ल करने जैसी संगीन धमकियाँ दी जा रही हैं। अठारह हज़ारी में ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी पर तहसील, प्रेस क्लब और शहरियों की जानिब से पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती और मुल्क दुश्मन अनासर के ख़िलाफ़ फ़तह का जश्न मनाया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शराज। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर तहसील, प्रेस क्लब और 18 हज़ारी के शहरियों ने जश्न मनाया। फतेह शाह से एक वलवला अंगेज रैली निकाली गई जो जोशो खरोश से चौक 18 हज़ारी पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में सहाफ़ियों, ताजरों और नौजवानों की आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने पाक फौज से इज़हार यकजहती करते हुए हुब्बुल वतनी के नारे बुलंद किए और शहदा को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। कई भारतीय तंसीबात और एयर बेसिस तबाह करके दुश्मन को भरपूर जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि कौम मुत्तहिद है और अपने मुहाफ़िज़ों के साथ सीसे पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। ये कामयाबी पाकिस्तान की सलामती और कौमी वहदत और अफवाज पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तानी शाहीनों की परवकार फतह और भारत को इबरतनाक शिकस्त पर मुजफ्फरगढ़ कैम्प्रीहेंसिव स्कूल के तलबा का जोशो खरोश दीदनी सजदा शुक्र बजा लाया गया। मज़ीद तफ़सीलात शेख फैसल फराज की रिपोर्ट में देखिए। बिल्मों और असातिज़ा का कहना था कि हिंदुस्तान की अयारी और मकाराना चालबाजियों को हमारे पाक फौज के शाहीनों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है उसे तारीख में सुनहरे अल्फाज में याद रखा जाएगा। नई नस्लों को शानदार पैगाम गया है कि पाकिस्तान कलमा तैयबा के नाम पर बना था, इसको हिंदू बनिया अब मैली आंख से नहीं देख सकते। दावों को साबित कर दिया है। हमारे पाक अफवाज ने जिस तरह इनका राफेल तियारा गिराया है, मोदी साहब आपको तो अब करारा जवाब मिल चुका होगा। और इसके अलावा हम स्टूडेंट पाक फौज के रात के अंधेरे में 1965 की तरह पाकिस्तान पर हमला किया, क्योंकि वो बुज़दिल है और बुज़दिल कौम है। पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान की फिजाया ने
یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کی فضائیہ پوری دنیا کی نمبر 1 فضائیہ ہے اور پاکستان کی فوج پوری دنیا کی نمبر 1 فوج ہے. اسی پاکستانی افواج نے سیسا پلائی دیوار بن کر ازلی دشمن بھارت کے دانت کھٹے کیے ہیں، جس کو دنیا بھر کے امن پسند لوگ خوب سراہ رہے ہیں. ہم سب پاکستانی اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہمارا ٹیم کے ہمراہ شیخ فیصل فراز، چینل 5 مظفر گڑھ. اور ابھی آپ کو براہ راست دکھائیں گے وہ مناظر کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے قطر پہنچ گئے ہیں. مناظر ہیں قطر ایئرپورٹ کے، دوحہ کے، جہاں پر امریکی صدر سعودی عرب کا 2 روزہ دورہ کر کے قطر پہنچے ہیں. امریکی صدر نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب کا 2 روزہ دورہ کیا تھا. اس کے بعد امریکی صدر جو ہیں قطر پہنچ گئے ہیں. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے قطر پہنچ گئے ہیں. ان کا خصوصی طیارہ جو ہے دوحہ ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا ہے. دوحہ میں امیر قطر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا استقبال کیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے قطر پہنچ گئے ہیں. دوحہ میں امیر قطر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ریڈ کارپیٹ استقبال کیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرقی وسطیٰ کا دورہ کر رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے قطر پہنچ گئے ہیں. خصوصی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں 5 نیوز کی اسکرین پر، جہاں پر ان کا خصوصی طیارہ دوحہ ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا ہے. دوحہ میں امیر قطر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا استقبال کیا. آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2 روزہ سرکاری دورہ کر کے سعودی عرب کا مکمل کر کے اب قطر پہنچ گئے ہیں. امریکی صدر قطر میں قیام کریں گے. امیر قطر نے دوحہ ایئرپورٹ پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا استقبال کیا ہے. اہم دورہ امریکی صدر کا اس وقت کہا جا رہا ہے. امریکی صدر جو ہے خلیجی ممالک کا دورہ کر رہے ہیں. گلف کنٹریز کے دورے پر امریکی صدر نکلے ہیں. پہلے امریکی صدر سعودی عرب کے شاہ سلمان کی دعوت پر سعودی عرب کا 2 روزہ دورہ کیا. اب سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے امریکی صدر جو ہیں قطر پہنچ گئے ہیں. قطر میں دوحہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر امیر قطر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا استقبال کیا ہے. آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے قطر پہنچ گئے ہیں. دوحہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر امیر قطر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا استقبال کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جو کہ غلف کنٹریز کے دورے پر نکلے ہیں. اس سے قبل وہ سعودی عرب میں موجود تھے اور سعودی شاہ سلمان کی دعوت پر وہ سعودی عرب کا دورہ کر رہے تھے. 2 روزہ ان کا سرکاری دورہ تھا جسے وہ مکمل کر کے اب قطر پہنچ گئے. افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پریس کلب مصطفیٰ آباد میں تقریب منعقد کی گئی ہے. شہداء کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی. افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریلی نکالی گئی ہے. آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا. کیک بھی کاٹا گیا. رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے ارشد علی شامی. پریس کلب مصطفیٰ آباد کی طرف سے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریبات کا اہتمام کیا گیا، جس میں معروف عالم دین حضرت مولانا ناصر مدنی نے بھارتی حملے میں شہید ہونے والے معصوم شہریوں کی نماز جنازہ ادا کی. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تقریب میں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہیلتھ پنجاب و ایم پی کے حلقہ پی پی 176 چودھری محمد الیاس خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. انڈیا کو منہ توڑ جواب دینے پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا اور افواج پاکستان زندہ آباد ریلی بھی نکالی گئی. افواج پاکستان کی شاندار اور مثالی کامیابی پر کیک بھی کاٹا گیا. تقریب میں محمد عمران سلفی صدر پریس کلب مصطفیٰ آباد سمیت مختلف مکتبہ فکر کے نمائندہ افراد نے شرکت کی اور افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا. حضرت مولانا ناصر مدنی، ایم پی اے چودھری محمد الیاس خان، محمد عمران سلفی و دیگر مقررین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ دنیا کے بزدلوں کو بتا دو کہ اگر موت میدان جنگ میں ہوتی تو خالد بن ولید کبھی چارپائی پر نہ برتا. جٹ نے کر دیتے واٹے. اچھی بولو خدائیہ دا چیف جڑا ہے. چلو یار جٹا دی کڑی تعریف کرو تانوں کی گولا بجدا ہے. اچھی بولو خدائیہ دا چیف ایئر مارشل ظہیر احمد ہے جٹ تے اونے موتی دے کر دیتے وے. افواج پاکستان نے نہ صرف انڈیا کی طرف سے رات کی تاریکی میں کیے گئے بزدلانہ حملے کو ناکام بنایا
बल्कि इंडिया को दिन की रोशनी में मुंह तोड़ जवाब भी दिया। अरशद अली शामी, चैनल 5, मुसाबात, कसूर। अहमदपुर शर्किया में भी सुथरा पंजाब मुहिम नाकाम होने लगी है। टीमें सिर्फ अहम शाहराहें साफ करके ओके की रिपोर्ट दे रही हैं। अंदरून महल्ला और गलियों में गंदगी के ढेर लग गए हैं। मज़ीद सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुफीज़ुर रहमान से। मुफीज़ बताइएगा। जी, इस वक्त हम अहमदपुर शर्किया मोहल्ला कटरा अहमद खान में मौजूद हैं, जहाँ पे साफ सुथरा पंजाब महकमे की जानिब से अहकामात को हवा में उड़ा दिया जा रहा है। यहाँ पे इलाका मकी सरापा एहतजाज है कि मेन रोड्स पे तो सफाई की जाती है, लेकिन गली कूचों में सफाई का इंतजाम ना है। शहरियों से ही जानते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये टोटल का टोटल निज़ाम जो है ना वेयर इन्वेस्टमेंट का यहाँ जो है ना फैल जा रहा है। पूरे गली मोहल्ले भरे हुए हैं, सिर्फ ये रोडों के ऊपर शहर पूरे शहर में सफाई दिखा रहे हैं। पूरे शहर में नालियाँ भरी हुई हैं, मोहल्ले भरे हुए हैं, शहरी चलने के लिए परेशान है। गंदा पानी हर नाली में ठहरा हुआ है। हमारी इंतजामिया से इल्तिजा है कि ये फौरन ये ख़त्म किया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का यही है एहतजाज करना कि यहाँ की गली कूचों पे भी जो है ध्यान दिया जाए। एक और शहरी सरापा एहतजाज है, उन्हीं से जानते हैं। लेकिन जी अफसरान जितने भी हैं बाहर से आके सर्वे करके चले जाते हैं। मेन रोडों की तो सफाई होती है, अंदरून शहर कहीं पे भी कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। गली गली मोहल्ले के अंदर कचरों के ढेर बने हुए, पानी का कोई इंतजाम नहीं है। जहाँ देखो पानी रुका हुआ है। बुजुर्ग बच्चे शहरी बीमारी में मुतला हो रहे हैं जी, खारिश की बीमारी लगी हुई है। हमारी रिक्वेस्ट है जी वज़ीर आला पंजाब साहब से हमारे शहर अहमदपुर शर्किया का भी नोटिस लिया जाए और अंदरून शहर की चेकिंग की जाए। जैसे पूरे पंजाब में सफाई हो रही है, यहाँ की भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आके कुछ चेकिंग करें। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना था कि गली कूचों में भी साफ सुथरा पंजाब जो है शामिल होता है प्रोग्राम में, लेकिन यहाँ मेन सड़कों पर मेन चौराहों पे जो है वो सफाई की जाती है। जी, डिप्टी कमिश्नर कुरतुलैन मेमन ने तहसील जतोई के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। दौरे का मकसद सफाई सुथराई और तजावुज़ात की सूरत हाल का जायज़ा लेना था। डिप्टी कमिश्नर कुरतुलैन मेमन ने जतोई शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मुतालिका महकमों को हिदायत दी कि तहसील भर में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और गैर कानूनी तजावुज़ात का फौरी ख़ात्मा यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर का ये भी कहना था कि शहरियों को साफ़ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम करना इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है। उनका कहना था कि अवामी शिकायत का फौरी अज़ाला करते हुए बेहतरी के इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकपतन पुलिस ने बैनुल अज़लाई मनशियात फ़रोश नज़ीर उर्फ काली को गिरफ़्तार करके 12 किलो चर्स बरामद कर ली है। थाना चकबेदी पुलिस ने बैनुल अज़लाई मनशियात फ़रोश नज़ीर उर्फ काली को गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस ने मनशियात फ़रोश के कब्ज़े से 12 किलो चर्स बरामद कर ली है। मुलजिम कोट मान सिंह मनशियात की सप्लाई लेकर पहुंचा तो पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। DPO जावेद चद्दर का कहना था कि पाकपतन को हर सूरत ड्रग फ्री बनाएंगे। नौजवान नस्ल को मनशियात जैसे जहर कातिल से बचाना पुलिस की अवलीन तरजीह है। DPO ने पुलिस टीम को तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान भी किया। शाहकोट सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की भारतीय ड्रोन हमले में ज़ख्मी होने वाले शहरी मोहम्मद अहमद के घर तहसील शाहकोट आमद। डिप्टी कमिश्नर ननकाना, असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट समेत मिलिट्री के अफसरान भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने ज़ख्मी नौजवान की इयादत की और उसकी खैरियत दरियाफ़्त की। सूबाई वज़ीर का ये भी कहना था कि पाक फ़ौज का हर जवान हिंदुस्तानी जारियत का सामना करने के लिए सीसा पिलाई दीवार है। भारत समझता था कि शब खून मार कर और मासूम सिविलियन आबादी पर हमले करके हमें दबा सकता है। कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है। हर पाकिस्तानी अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ा है। बुनियानुल मरसूस ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला कर रख दिया है। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान ने हर महाज पर अपनी बरतरी साबित कर दी है। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी इकरा नासिर और चीफ ऑफिसर अली रज़ा की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में तरक्याती मनसूबों, सेवरेज लाइन बिछाने के काम, डिस्पोजल स्टेशन तामीर समेत ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के काम पर जारी पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने काम की सुस्तरवी पर बरहमी का इज़हार करते हुए ठेकेदार समेत अफसरान को काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत की। उनका कहना था अवामी फलाह के मनसूबों में किसी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज़ किया जाए और मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। कंसल्टेंट समेत अफसरान अपनी जिम्मेदारी को यकीनी बनाएं और फील्ड में रहकर काम की निगरानी भी करें।
वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक कमालिया के शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएँ। पिंडी घेप में अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए RPO रावलपिंडी और DPO अटक ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। म्यूनसिपल कमेटी पिंडी घेप में रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी बाबर सरफराज और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक डॉक्टर सरदार गयास गुल की जानिब से मुनक्किदा खुली कचहरी में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। RPO DPO ने मौके पर मौजूद मुतालिका अफसरान को हिदायत जारी की कि वह शिकायत के हल में किसी किस्म की कोताही ना बरतें। अवामी सतह पर खुली कचहरी को सराहा गया। ननकाना साहब ज़िले पुलिस का गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। रवा माह में गैर कानूनी असलहा रखने वाले 41 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजमान से 4 कलाशनकोव, 31 पिस्टल, 7 राइफल, 2 बंदूकें और 392 गोलियां और कारतूस बरामद किए गए, जबकि असले की नुमाइश और गैर कानूनी कब्जे में रखने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जराइम पेश अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। खबरें और भी हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अहमदपुर शर्किया में शहरियों ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर रैली निकाली। रैली के शुरका ने फौजी जवानों को खराज तहसीन पेश किया और माला पहनाकर फूल भी निछावर किए गए। रैली के शुरका डेरा नवाब साहब कैंट के मेन गेट पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने तैनात फौजी जवानों को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर शुरका ने पाक अफ़वाज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के पुरजोश नारे बुलंद किए। रैली के शुरका का ये भी कहना था कि पाक अफ़वाज के कामयाब ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने मगरूर दुश्मन को चारों शाने चित कर दिया। उन्होंने पाक फ़ौज की बहादुरी को सराहा और मुल्क और मिल्लत के लिए उनके खदमात को खराज तहसीन पेश किया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में बोसन गैंग के खिलाफ कच्चे में ऑपरेशन चौथे रोज़ भी जारी रहा। अहले इलाका के मुताबिक पुलिस मुकाबले के बाद ज़ख्मी होने वाले 2 और डाकू हलाक हो गए हैं। अलीपुर में हलाक होने वाले डाकुओं की शनाख्त गजनफर बोसन, नाज़मी बोसन के नामों से की गई है। ऑपरेशन की कमान DSPs मोहम्मद नसीर बख्त चौधरी, फयाजुल हक और मियाँ यूसुफ हारून कर रहे हैं। पुलिस मुकाबले में हलाक डाकुओं की तादाद 3 हो गई। मज़ीद 2 डाकुओं के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। मटियारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में पाक फ़ौज से ज़ारी यकजहती के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान शुरका ने पाक फ़ौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन भी पेश किया है। मटियारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में पाक फ़ौज से ज़ारी यकजहती के लिए मुनक्किदा तकरीब में मौजूदा हालात में मुल्क की सलामती के लिए मुत्तहिद होकर काम करने के अज़म का इज़हार किया। इस मौके पर DHQ अस्पताल से एक रैली भी निकाली गई। रैली के अख्ताम पर अस्पताल के अहाते में पाकिस्तान का कौमी परचम लहराया गया, जहाँ शुरका ने कौमी तराना पढ़ा और वतन से वफादारी का अहद दोहराया। पूरे मुल्क की तरह तहसील शोरकोट में भी भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैलियों का सिलसिला जारी है। शोरकोट कैंट में रैली निकाली गई जो रफ़ीकी एयरबेस पर इख्तिताम पजीर हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं शोरकोट से हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन। पूरे मुल्क की तरह तहसील शोरकोट में भी पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती और फतह रैलियों का सिलसिला जारी है। पाक फ़ज़ाइया के शहीदों को खराज तहसीन पेश करने के लिए शोरकोट कैंट में रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत राना इरशाद, राना मुदस्सिर सुहेल, चौधरी खुरम शहजाद गुज्जर ने की। रैली के शुरका ने कुतबे और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ज़ाइया जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दर्ज थे। रैली के शुरका ने अपने फ़ौजी भाइयों पर गुलपाशी की और फूलों के हार पहनाए। रैली बेस रफ़ीकी पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर राना मुदस्सिर सुहेल और चौधरी खुरम शहजाद गुज्जर ने सहाफ़ियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि बुज़दिल भारत ने बेगुनाह शहरियों और इबादत गाहों को निशाना बनाया, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत इक़दाम था। हमारी बहादुर फ़ौज ने भारत के 5 जहाज़ गिराकर अपनी बरतरी साबित की। भारतीय तैयारे गिराने पर पाक फ़ज़ाइया को पाकिस्तानी अवाम खराज तासीन पेश कर रही है।
पाक फ़ौज एक तरबियत याफ्ता फ़ौज है और अपने वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना खूब जानती है। फ़ौजी भाइयों ने भारत को करारा जवाब दिया है। तमाम सियासी पार्टियों और अवाम मुल्क की हिफाजत और सलामती के मामले पर एक पिच पर हैं। हम में लाख इख्तलाफात सही, लेकिन मुल्क की हिफाजत की खातिर हम सब मिलकर मादरे वतन की हिफाजत करेंगे। कौम को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वतन की हिफाजत पाक फ़ौज के हाथों में है और अल्लाह के फजल व करम से बुज़दिल भारत को पता चल गया है कि अफ़वाज पाकिस्तान में कितनी ताकत है। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ आबिद हुसैन, 5 न्यूज़, शोरकोट। ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही शहरियों की जानिब से बकरों की ख़रीदारी शुरू हो गई है। मवेशी पॉल चौधरी बशीर हंजरा की राजन पूरी बकरे तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। खूबसूरत दीदा ज़ेब बकरों की मांग में भी इजाफा हो गया है। जैसे जैसे बकरा ईद करीब आ रही है तो एक तरफ शहरियों की जानिब से कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो गया है, वहीं पर मवेशी पाल चौधरी बशीर हंजरा के पाले हुए राजनपुरी, सिंधी और रहीम यार खान के बकरों की धूम मची हुई है, जो ख़रीदारों के लिए तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। चौधरी बशीर ने कहा है कि वो कई साल से कुर्बानी ईद के लिए मौके पर आला नस्ल के बकरों को ख़ुद घर में पाल कर फ़रोख्त करता है। दीदा ज़ेब खूबसूरत और तंदुरुस्त नज़र आने वाले बकरों को वो रोज़ दूध, गंदम, चारा, वंडा और देसी खुराक देता है, जिससे ना सिर्फ उनका वज़न बढ़ता है बल्कि ये बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। रूरल हेल्थ सेंटर झड्डो के अमले पर हमले के खिलाफ सिविल इंतज़ामिया और सिविल अस्पताल के MS की क़यादत में मेडिकल स्टाफ ने बाजू पर सियाह पट्टियाँ बांध कर पुरअमन एहतजाज का मुजाहरा किया है। झड्डो में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुजाहरीन का कहना था कि दौरान ड्यूटी कुछ नामालूम अफराद ने लेडी डॉक्टर्स के साथ बदतमीज़ी की। जब अस्पताल के अमले ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन अफराद ने स्टाफ पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में गुलाम रसूल महर समेत दीगर मुलाजमीन ज़ख्मी हो गए। इस वाक़े की इतला झड्डो थाने को भी दी गई, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जो कि काबिल अफसोस है। पतोकी के गवर्नमेंट हाई स्कूल हुसैन खान वाला में पाक फ़ौज के ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर मनाया गया। साथ साथ तलबा ने शहरियों के साथ मिलकर रैली भी निकाली और पाक फ़ौज के हक़ में नारे भी लगाए। शुरा ने भारतीय जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देने और अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की ज़बरदस्त कामयाबी पर पाक फ़ौज से ज़बरदस्त अंदाज में यकजहती का इज़हार किया। पाकिस्तानी परचम थामे शुरा ने सीनियर हेड मास्टर की क़यादत में रैली निकाली और पाक फ़ौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 5 न्यूज़।